Hello everyone, myself Vinay Mishra, working as a faculty of Mechanical Engineering Department of Ambalika Institute of Management and Technology, affiliated with AKTU. Today we are basically going to have a discussion for the subject of thermodynamics, the subject of BTech third semester from AKTU syllabus. So, in our previous lecture we have talked about first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, availability, unavailability, about heat engines, about refrigerator and heat pump. Moreover, we have also discussed about the concept of entropy, how it is useful in our life, how we are going to use the concept of entropy for the heat engine as well as the heat pump and the rest of the mechanical elements. Now, today we are going to have a discussion basically on the steam and the Rankine cycle. So, if we talk in the previous lecture we have already talked about the latent heat, sensible heat, the specific heat. A little bit I am going to discuss, I am going to repeat so that it will be more useful for you. So, latent heat is basically the heat required to change the phase of the substance at the constant temperature, we have already discussed in the earlier classes. Sensible heat is the amount of heat required to raise the temperature in the same phase, and specific heat is basically the kind of a heat which is required to raise the temperature by 1 degree centigrade if we are considering 1 kilogram, 1 unit mass of the substance itself. So, basically we have seen that we are having two types of specific heat. The first one is just Cp, the second one is the Cv. The process takes place in such a way that the pressure remains constant and the amount of heat given to the system in order to raise the temperature by 1 degree centigrade when its mass is 1 kilogram. In that condition, the kind of heat given to the system is known as the specific heat at constant pressure. And if the process takes place in such a way that volume remains constant, in that condition, if the heat given to the system which is used to raise the temperature by 1 degree centigrade, subject to the condition if mass is 1 kilogram or mass is 1 unit, in that condition the amount of heat given to the system itself, that is equal to the specific heat at constant volume. So, अगर हम लोग बात करें इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस की, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई द वैल्यू ऑफ Cp इज ग्रेटर देन Cv, वाई द वैल्यू ऑफ Cp इज ग्रेटर देन Cv. इसको थोड़ा सा डिस्कशन आज हम लोग कर लेते हैं कि Cp और Cv के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन इसके बारे में ये भी देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू Cp की वैल्यू क्यों Cv से ज़्यादा होती है. सपोज एक कंटेनर है, गैस है, इसमें ऊपर पार्टीशन लगा हुआ है. अगर हम लोग हीट दें और लेट द प्रोसेस टेक प्लेस इन सच अ वे दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट रहने दें हम, तो होगा क्या, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आते हैं. अगर हीट हम दे रहे हैं तो गैस एक्सपैंड करेगी, यानी ये पार्टीशन ऊपर मूव करेगा, यानी जो पिस्टन है हमारा ऊपर मूव करेगा, इसको पिस्टन कहें तो इस कंडीशन में जब ऊपर मूव करेगा तो ये कुछ वर्क करेगा. डेफिनेटली द काइंड ऑफ वर्क डन मस्ट बी देयर बिकॉज द चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस. बिकॉज ये अगर ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम चेंज होगा, गैसेस फैलेंगी तो वॉल्यूम उसका बढ़ेगा. अगर गैसेस फैलेंगी वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, दैट मीन्स गैसेस कुछ वर्क करेगी, मतलब गैसेस एक काम करेगी, W वर्क डन करेगी इसके एक्सपेंशन होने में. और ये एक्सपेंशन हो क्यों रहा है, क्योंकि हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है. अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो जाहिर सी बात है
वॉल्यूम एक्सपेंशन इसका होगा। प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा अगर हम हीट देंगे, क्योंकि ये फैलेगी, और जब ये फैलेगी तो मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ पर पहुँच गया, यानी dx, या डिस्टेंस जो है चेंज इन वॉल्यूम अगर है इसका dv अगर मान लें, तो उस कंडीशन में तो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो dv होगा, और प्रेशर अगर हम लोग देखें कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा हमारा pdv होगा, वर्क डन होगा हमारा pdv। यानी हीट देने पे हीट के दो काम हुए यहाँ पे। द हीट इज परफॉर्मिंग टू वर्क। द फर्स्ट वन इज टू रेजिंग इट्स टेम्परेचर। फर्स्ट वन इसके टेम्परेचर को रेज कर रहा है, और दूसरा इसका पार्ट एक वर्क डन में भी कन्वर्ट हो रहा है। यानी जो हीट हम दे रहे हैं वो एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा है और दूसरा वर्क डन भी कर रहा है। फर्स्ट लॉ से अगर हम इस प्रोसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें, सपोज इस प्रोसेस को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें तो हम देखते हैं क्या होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है हमें, क्या करेंगे? अगर अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, ब्लॉकर्स लगा दिए हमने, ये ब्लॉक लगा दिया है जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर या नीचे मूव ना कर सके। यानी उस कंडीशन में इसका अगर हीट देंगे हम तो गैसेस फैलने की कोशिश करेगी लेकिन फैल नहीं पाएगी। फैल नहीं पाएगी मतलब वर्क डन नहीं हो पाएगा, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने ये ब्लॉकर्स लगा कर रखे हैं। तो ब्लॉकर्स लगाने पे होगा क्या? वॉल्यूम चेंज ज़ीरो। ये ऊपर नहीं जाएगा, कोशिश करेगा ऊपर जाने की लेकिन जाएगा नहीं, तो dV की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ज़ीरो। प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर हीट देने पे बढ़ जाएगा, उससे लेना देना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम से लेना देना है हमें। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है यहाँ पे तो उस कंडीशन में इसको हमें स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अगर हीट देंगे, एक्सपेंशन होने की कोशिश करेंगी गैसेस, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इसका कांस्टेंट होगा। अब इस कंडीशन में अगर इसका टेम्परेचर चेंज देखें, इस कंडीशन में अगर इसका टेम्परेचर चेंज हम देखें तो हम देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज ओनली परफॉर्मिंग इट्स वन टास्क, एंड द वन टास्क इज रेजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं वो सिर्फ एक पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे थे उसका यूज़ हो रहा था टेम्परेचर बढ़ाने में और वर्क डन करने में। तो जाहिर सी बात है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ बढ़ाना हो और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ बढ़ाना हो, तो उस कंडीशन में द अमाउंट ऑफ हीट गिवन ओवर हेयर दैट मस्ट बी हायर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन एन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जब उसका मास 1 किलोग्राम होगा, उस कंडीशन में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द सिस्टम विच इज़ परफॉर्मिंग ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी और यहाँ पर हीट हमें कम देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हीट का जो पार्टीशन है वो हीट का डिवाइडेशन है 2 पार्ट में नहीं हो रहा है, एक ही पार्ट में हो रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। यानी यहाँ पर टेम्परेचर कम हीट देने से बढ़ जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हीट देने से बढ़ेगा। सेम टेम्परेचर, अगर सेम गैस ले लें तो सेम, दोनों का मास 1 है, दोनों का टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दोनों सी सेम एटमॉस्फेयर में अगर होंगे, तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा तो यहाँ पर हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमको कम देनी पड़ेगी, और कांस्टेंट प्रेशर में जब ये प्रोसेस होगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हीट हमको जो हीट है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए द Cp इज हैविंग लार्जर वैल्यू एज कंपेयर टू द Cv। In this way we can say the amount of heat given to the system at constant pressure is higher as compared to the amount of heat given to the system
which is performing at constant volume. Yani the amount of heat, I am repeating, the amount of heat required to raise the temperature of a substance for by 1 degree centigrade when the mass is 1 kilogram at a constant pressure is somewhat higher as compared to the heat given to raise the temperature by 1 degree centigrade of 1 kilogram gas if it is taking place at constant volume. So, we can simply say that the value of Cp is larger as compared to Cv. Cp is, we can say, Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा होती है और Cp माइनस Cv R के बराबर होता है, ये हम लोग को पहले ही पता है, जो एक पॉजिटिव वैल्यू है. इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि Cp Cv के वैल्यू में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसका कंपैरिजन करेंगे. Boiling, one of the most important part. What is boiling? अगर हम लोग बॉइलिंग की बात करें, अगर हम लोग को रैंकाइन साइकिल समझना है, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के बारे में समझना है, तो बॉइलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है. अगर बॉइलिंग को नहीं समझ पाएंगे तो रैंकाइन साइकिल को नहीं समझ पाएंगे, उसके एनालिसिस को नहीं समझ पाएंगे और जो न्यूमेरिकल्स है उसमें वो उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे. तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग एंड वेपर प्रेशर. सो boiling, if we talk about boiling, in the simple word we can say the boiling is a kind of conversion of water into steam. The process in which the steam is being generated is known as boiling, and in the boiling we used to give certain amount of heat to the water above its saturation temperature, so that the conversion of liquid molecules into vapor molecules take place, and the process is known as boiling. In the simple word, यानी अगर बॉइलिंग की बात करें तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस ऑफ स्टीम जनरेशन. एक स्टीम जनरेशन का एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट. यानी होता क्या है बेसिकली, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में समझें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने वाटर ले लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार. इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1.01 बार है तो उस कंडीशन में इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. यानी पानी जो बॉयल करेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा. इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ही हम हीट देंगे वैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. 50, 60, 70, 80, 99 इस तरीके से चलता चला जाएगा. कहाँ तक जाएगा? 99.99, 100 से जस्ट पहले तक जाएगा. जैसे ही 100 पहुँचेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टीम में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, स्टीम जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी. यानी when the instant at which the temperature of this water reaches 100 degree centigrade, at that instant the boiling starts, and we can say the kind of the steam generation take place, the kind of conversion of liquid into vapor form is taking place. यानी conversion हो रहा है liquid से vapor के form में, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहेंगे. लेकिन हम लोग ये जनरली बताते हैं कि बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है. ऐसा कहना बिल्कुल गलत है. बेसिकली इट इज़ नॉट द टेम्परेचर ओनली विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग. बेसिकली वी कैन से दैट द काइंड ऑफ प्रेशर इज देयर विच इज एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉइलिंग प्रोसेस. यानी टेम्परेचर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर की होती है बॉइलिंग को प्रोसीड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ा दें 1.01 बार से 2.3 पॉइंट समथिंग कर दें, उस कंडीशन में ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कभी नहीं करेगा. यानी
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा 120-30 करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसका हो जाएगा। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट द स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑलवेज, इट इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज, बट इट डिपेंड्स on the atmospheric pressure and the kind of pressure exerted by the water itself, by the vapor itself, that is known as vapor pressure। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा करने पे ये जो पानी 100 पे बॉयल हो रहा था अब होगा ज़्यादा पे बॉयल होगा। अगर प्रेशर कम कर दें, अगर प्रेशर हम कम कर दें इसका 1.015 बार से 0.5 बार कर दें, तो हम लोग देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। यानी जो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहा था अब वो बॉयल करेगा 100 डिग्री से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली हम लोग ये कहते हैं कि बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच द हीट इज बीइंग गिवन टू द सिस्टम so that its temperature reaches about 100 degree centigrade and the steam generation take place. Now the question comes, the interesting question comes that whether it is possible that boiling will take place without giving heat, whether it is possible that boiling will take place without giving heat, without giving heat, क्या boiling possible है? यानी पानी का उबलना क्या पॉसिबल है जब हम हीट ना दे तो भी? अगर इसको हम लोग टेक्निकल सेंस में बोलें तो हम कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे कंडीशन में होता क्या है, बाहर का प्रेशर है 1.01 बार, बाहर का टेम्परेचर कुछ है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग देखते हैं अगर बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बॉइलिंग हो सकती है बिना हीट दे करके, तो हम लोग सिंपली कहेंगे हाँ। कैसे? हम लोग को करना क्या पड़ेगा, सिर्फ ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कम करना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करने से प्रेशर फॉल हो जाएगा 0.5, 0.2, 0.3 इस तरीके से करके करते करते कम होता चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 25 से कम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 25 से कम हो जाए। क्यों? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दें हम तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है। अगर 0.5 कर दें तो हो सकता है 90 चला आए या 80 हो जाए, इस तरीके से और कम कम करते चले जाएं अगर हम, तो एक पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर है, वो कम होता चला जाएगा। उस कम टेम्परेचर पे हम लोग ये कहेंगे कि अगर 25 से नीचे आ गया तो वहाँ पर पानी अपने आप बॉयल करने लगेगा। ये जो टेम्परेचर है इसके लिए हीट का काम करेगा। ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके लिए एज ए हीट काम करेगा वो, और बिना हीट दे करके, एडिशनल हीट दे करके, बिना एडिशनल हीट दे करके पानी हमारा बॉयल करने लगेगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली द बॉइलिंग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है। इसके लिए बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल टर्म है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज यूज्ड इन द बॉइलिंग प्रोसेस। बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्रेशर। दो प्रेशर होते हैं जो आपस में बैलेंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द सेकंड वन इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर को समझ लेते हैं, ये होता क्या है। क्लोज कंटेनर है, फॉर एग्जांपल ये वाटर है हमारा। वेपर प्रेशर इज द बेसिकली द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस when the kind of equilibrium take place. That means it is simply the kind of pressure which is exerted by the vapor on the liquid surface under the condition of equilibrium. अगर हम लोग बात करें पानी की तो होता क्या है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो होता क्या है, वेपोराइजेशन होता रहता है। ये इस सरफेस को छोड़ करके इस वेपर रीजन में, इस वर्ड स्पेस को अगर हम लोग, स्पेस को अगर हम लोग एक स्पेस कहें, वेपर रीजन इसको हम लोग यूज़ करेंगे। वेपर रीजन में या एयर रीजन में इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपोरेट कर जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाते हैं। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन इस वेपर फॉर्म में होता रहता है। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो अपने लिक्विड के बॉन्ड को छोड़ करके, बॉन्डिंग को तोड़ करके उनकी एनर्जी सफिशिएंट हो जाती है, तो वो इस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब at the same point some of the molecules, at the same point, at the same instant
some of the molecules are re-entering this liquid phase. This process in which the liquid molecules converting into vapor form, that is known as vaporization. At the same instant, at the same time, the kind of molecules are there, vapor molecules are there, which are re-entering in the liquid form. री-एंटरिंग इन द लिक्विड फॉर्म, इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो री-एंटर करेंगे लिक्विड को, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। एक ऐसा पॉइंट आएगा, चूंकि इसको हमने बंद कर रखा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा, द काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम टेक प्लेस, द रेट ऑफ वेपोराइजेशन, जिस रेट से वेपोराइजेशन हो रहा है, जिस रेट से कंडेंसेशन हो रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी द काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन बिटवीन द वेपोराइजेशन एंड condensation process. That is the condition of equilibrium, and we can say at that instant the pressure exerted by this vapor on this surface liquid is known as vapor pressure. That means in that condition we can simply say the kind of pressure exerted by the vapor on the liquid surface under the condition of equilibrium, in which the rate of vaporization as well as the rate of condensation are equal. At that condition we can say this is the amount of pressure. So, I am repeating, the vapor pressure is the pressure exerted by the vapor on the surface of this under the condition of equilibrium. So, इस तरीके से हम लोग the vapor pressure और boiling को देखा हम लोगों ने। अब होता क्या है, boiling के बारे में अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है और ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार। हमने बताया दो तरीके के प्रेशर आपस में बैलेंस करते हैं, तब बॉइलिंग के लिए वो दोनों प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द सेकेंड वन इज द वेपर प्रेशर। Atmospheric pressure is the pressure created by the atmosphere on the surface, and the vapor pressure is basically the pressure exerted by the vapor of that liquid molecules. यानी इस प्रेशर को ये प्रेशर बैलेंस करता है। अब होता क्या है, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है तो इसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके करस्पॉन्डिंग 1.01 बार अगर स्टीम टेबल में देखेंगे तो सैचुरेशन टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी 1.01 बार के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार के लिए पानी जो है 100 पे बॉयल करेगा। क्यों, होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका सेम है, अगर एटमॉस्फेयर सेम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1.01 बार है, लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर उतना नहीं, ठीक है, वेपर प्रेशर उतना नहीं है, यानी नीचे से जो प्रेशर इस तरह डायरेक्शन जो प्रेशर लग रहा है वो है आपका कम। अगर वो कम है तो मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जा पाएंगे, यानी ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे, वेपोराइजेशन नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को इस थ्रेश होल्ड को हटाने के लिए, यानी क्रॉस करने के लिए। उसके लिए क्या होगा, जैसे हम इसको हीट देंगे, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। द मोमेंट वी गिव द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट टू द वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वी कैन से दैट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, और वेपर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करता 1.01 बार के जस्ट इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन में वाटर को इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस प्रेशर को क्रॉस कर सके। उस कंडीशन में हम ये कहेंगे, एट दैट कंडीशन 50 से जब टेम्परेचर बढ़ाते चले गए 100 तक पहुंचा दिया, जैसे ही 100 तक पहुंचा वेपर प्रेशर इसका प्रेशर इसका राइज किया, इसके बराबर आ गया या इससे जस्ट पहले या बाद में, इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग बात करें, इसके जस्ट अप्रॉक्सीमेट बराबर आ गया। उस कंडीशन में इसके जो
मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होने लगेंगे, स्टीम का जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्टीम जनरेट होने लगेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 1.01 हमने कम कर दिया, 1.01 बार हमने कम कर दिया से 0.5 बार, यानी अब जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक 0.5 बार लग रहा है, यानी अब ऊपर से दबाव हमारा कम हो गया है। तो ऊपर से दबाव हमारा कम हो गया है तो अब पानी को, मॉलिक्यूल्स को ऊपर निकलने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा, जो 100 पे बॉयल हो रहा था अब वो कम पे ही बॉयल हो जाएगा, कुछ 100 से कम पे बॉयल हो जाएगा, यानी 50 से लेकर के 70 80 हो सकता है 85 पे बॉयल हो जाएगा, 85 86 पे वो बॉयल हो जाए। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि boiling point is basically the process in which the steam generation take place in the vapor pressure if the vapor pressure become equal to the atmospheric pressure। यानी इसका जो प्रेशर है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में स्टीम जनरेशन हो जाएगा, स्टीम जनरेशन होने लगेगा और उस कंडीशन हम लोग कहेंगे द बॉइलिंग टेक प्लेस। इसीलिए कभी कभी हम लोग पहाड़ों पे देखते हैं, पहाड़ों पे जहाँ पर प्रेशर कम होता है वहाँ पर पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, ठीक है, पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, 100 तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 100 से पहले ही पानी बॉयल हो जाएगा, यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा, 85 पे 86 पे हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम है तो पानी को उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा कि वो लिक्विड स्टेट को छोड़ करके वो बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाए, वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि वेपर प्रेशर कम होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। इस कंडीशन हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे वेपोराइजेशन जो हो रहा है वो जल्दी हो जाएगा, 100 से पहले जल्दी हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें, 2 बार कर दें। अब इस वाटर को एटमॉस्फेयर में जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, ताकि इस वाटर इसका मॉलिक्यूल छोड़ करके एटमॉस्फेयर में जा सकें। उस कंडीशन में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 100 से ज़्यादा देनी पड़ेगी, 100 से ज़्यादा देनी पड़ेगी, 110 115 इस तरीके से उसको देना पड़ेगा। और जैसे ही इसको एनर्जी उसको ज़्यादा देंगे हम, ठीक है, द मोमेंट इट रीचेस अप to the atmospheric pressure at that condition the boiling take place, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब किसी कंडीशन में जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग जो पॉइंट है वो बढ़ता है हमारा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटाने पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा घट जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द basic concept of boiling, the basic concept of vapor pressure. So today we have learned the basic concept associated with the boiling process, how boiling take place, what is the effect of boiling or BP or boiling point when the pressure, atmospheric pressure increases, when the vapor pressure increases, when the atmospheric pressure decreases. So इस तरीके से हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इंक्रीज़ करेगा, जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से कम हो जाएगा। इस तरीके से बॉइलिंग इज बेसिकली द प्रोसेस विच इज एसोसिएटेड विद द 2 प्रेशर, दैट इज द फर्स्ट वन इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द सेकंड वन इज योर वेपर प्रेशर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग एंड वेपर प्रेशर। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रैंकाइन साइकिल की और कुछ फेज ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू।